Ladies and gentlemen, this is my last lecture on literary, philosophical, and abstract essays in this classroom in this month. So, we have to see how far we have come and what is the future of philosophy, literature, and how we can connect these two with the literary essays. As in the outset, I defined literary essays are those essays which are not about on a concrete issue like democracy or poverty or global warming or politics, economics, but it is generally about life and about human existence, about human identity, and the philosophical, rational problems faced by human beings, and then we describe it in a general way. You see that Socrates and Plato, Aristotle, Montesquieu, Shakespeare, these people are relevant today, but we don't read yesterday newspaper. This is the difference. We don't read yesterday's newspaper, but we read, uh, books of thousands of years old. For Christians, the most sacred book is Bible, or for Jews, the Old Testament and the New Testament. The New Testament, that is called Gospels, and the Old Testament, that is Torah, and for Christians and Jews, they read it on daily basis, and for them, this is a book of permanent value. Similarly, Muslims, they read the Holy Quran, and they read it after 1400 years, still the book exists. For Hindus, Gita and Mahabharata and all these books also have thousands of years old history. Similarly, Buddhism, the Buddhist teachings, though Buddhism is not a religion, but still it's wisdom, psychology, and philosophy that is read by people today. So this is the difference between literary essays and non-literary essays. So we have to differentiate these two things. So please make a comment and write that literary or philosophical essays are on those subjects which are of permanent value. Literary or philosophical essays are those essays which are on the topics of permanent value. Please write this as a comment and we continue the class. Literary and philosophical essays are on those topics which are of permanent value. Buddhism, many people misconceive it that it is a religion. Even in Google, people write it, but it is not a religion. Use your own brain. Don't believe everything in the Google, because in the Google you have Bible and you have the Holy Quran. So will you believe in both? You don't believe in both. If you are Muslim, you believe in the Holy Quran. If you are Christian, you believe in Bible. So both are in the Google. तो गूगल में मौजूदगी जो है वो कोई ट्रुथ की निशानी नहीं है. वो तो हर बंदा अपनी चीज़ें उसमें लिख लेता है. ट्रुथ की निशानी क्या है जिसको आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में, वो आपका अपना दिमाग है या आपके अपने आंखें है. जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं रैशनलिज्म. और जब आप अपने आंखें इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहते हैं एम्पेरिसिज्म.
ये ट्रुथ की मेजरमेंट के लिए, नॉलेज की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. So I will be discussing this in a while. But Buddhism doesn't believe in any God. There is no concept of God and there are no prophets. Buddha was just a common wise person and he shared his wisdom with people, and this is called Buddhism. Like we say Naimism. कल मेरे नाम पे कोई बन जाए नईमिज्म, तो क्या नईमिज्म कोई रिलीजन होगा? नो, नईम की बात है. तो बुद्धिज्म का मतलब है बुद्धा की बात है. ठीक है, मैं कहता हूँ ट्रांसेंडेंटलिज्म या रैशनलिज्म, तो क्या रैशनलिज्म के साथ इज्म लगा कि क्या वो मजहब बन जाता है? नो. तो अपना दिमाग यूज करो, अपने आंखें यूज करो कि क्या बुद्धिज्म में कोई खुदा है या खुदा का कोई तस्वुर है? क्या बुद्धिज्म में पैगंबर है? क्या बुद्धा ने कभी कहा है कि ये मुझ पे वही आती है और मैं वही लोगों को पहुंचाता हूं? तो अगर उसने ये नहीं कहा तो फिर वो कैसे मजहब बन गया? बेशक गूगल में उसको मजहब कहा जाता हो. सो फॉर philosophical and literary essays, you have to go through RETI. RETI. RETI is the formula of epistemology. Epistemology. Epistemology is the scientific or philosophical study of knowledge. That what is knowledge? What is knowledge and what is not knowledge? That is called epistemology. 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 So epistemology is the knowledge of knowledge. कि भाई नॉलेज क्या चीज है, नॉलेज कहाँ से आता है? क्या मजहबी नॉलेज जो है ये नॉलेज है? कोई बंदा कहते जी महबूब आपके कदमों में और बवासीर का इलाज, मर्दाना कमजोरी का इलाज, तो क्या ये नॉलेज है? क्या ये बिलीवेबल है, क्रेडिबल है? क्या इस पे हम यकीन करें? सो एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जस्टिफिएबल बिलीफ. जस्टिफिएबल बिलीफ कि जब आप अपनी बिलीफ को जस्टिफाई कर सकते हैं. अगर आपका खुदा पे बिलीफ है तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? जब इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी एंड इट इज नॉलेज. अगर आप तो कहते नहीं जी कुरान में आया है, बाइबल में आया है, वो पीर साहब कह रहे थे कि खुदा मौजूद है, तो मैं भी कहता हूं कि खुदा मौजूद है, सो दिस इज नॉट एपिस्टेमोलॉजी. ये आपका फेथ है, आपका मजहब है, आपका जाती मामला है. हम आपको फोर्स नहीं करते कि भाई इसको छोड़ो, इसको मत छोड़ो. लेकिन when you have justification, then that becomes knowledge. अगर कोई आपको कहता है कि 2 जमा 2 कैसे 4 होते हैं, तो एकदम से 2 आम ले लो, 2 एप्पल ले लो, 2 और एप्पल ले लो, इकट्ठा करो, उनको गिनो, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, तो आपने उसको जस्टिफाई किया. इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं. प्रूफ किया, एविडेंस आपने ले आया. अगर कोई आपको कहता है कि वेयर इज गॉड, गॉड किधर है, ले आओ जरा दिखाओ, क्या आप उसको लेबॉर्ट्री में दिखा सकते हैं? क्या आप उसको अपने आंखों से दिखा सकते हैं? क्या आप उसको टच कर सकते हैं? क्या जो है आप उसको स्मेल कर सकते हैं? तो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन से रूशनास कराता है. एंड इट ओनली डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करता है, ये इम्पोज नहीं करता, एनफोर्स नहीं करता. मतलब मैं आप पे अपनी बात मनवा नहीं रहा, मैं आपके साथ सिर्फ बहस कर रहा हूं. जितना भी मेरा अप्रोच है वो डिस्क्रिप्टिव है. मैं चीजों को डिस्क्राइब करता हूं, प्रेस्क्राइब नहीं करता. मतलब नुस्खा नहीं दे दे कि जी ले लो और ये जो है वो हकीकत है और यही हकीकत है, कोई और हकीकत नहीं है. सो इन द फ्यूचर ऑफ फिलॉसफी, इन द फ्यूचर ऑफ रिलीजन, द फ्यूचर ऑफ लिटरेचर, which is our today's topic, that is that you will write essays on such dimensions. Now epistemology, yesterday we discussed ontology. कल हमने ontology को डिस्कस किया था. Ontology is the study of reality and reality is existence. तो कल हमने रियलिटी की बात की थी, रियलिटी को ऐसे के साथ और
फिलासफी के साथ और लिटरेचर के साथ कनेक्ट किया था, कल के नोट्स में भी और मेरी लेक्चर में भी। आज हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज क्या चीज़ है। ठीक है, एक बंदा आता है और आपको कहता है कि जी बारिश हो रही है, तो बाहर बारिश है, तो क्या आप उसकी बात पे यकीन करोगे? अब अंदर बैठे हैं, आवाज़ नहीं आ रही बारिश की, वो आपको कहता है कि बारिश हो रही है। अब आप देखते हैं कि यार ये बंदा जो है, मैं इस पर यकीन क्यों करूं? मेरे पास अपनी आंखें हैं, अपने कान है, तो मैं जाके खुद देख लेता हूँ कि बारिश है कि नहीं है। अब बारिश बाहर जाते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर ये नहीं कि उधर कोई बंदा गमलों को पानी दे रहा है और गमलों से जो है वो पानी टपक रहा है, तो ये नहीं है, ये बाकायदा बारिश है, ऊपर बादल है। अब पूरा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ जी बारिश है। सो दिस इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी आपको ट्रेन करता है कि भाई हर बात पे यकीन मत करो, थोड़ा सा उसको परखो, थोड़ा सा अपनी अकल को इस्तेमाल करो। तो जब आप अकल का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। फिर अकल के बाद आता है हवास, सेंसेस। सो व्हेन यू यूज योर सेंसेस, जब हम अपने सेंसेस यूज करते हैं तो हम तजुर्बा करते हैं, हम एक तजुर्बे से गुजर जाते हैं। एक तो मैं ऐसे बैठा हूं और सोच रहा हूं, तो मैं कोई तजुर्बा नहीं कर रहा। हाँ, फिलॉसफी में एक चीज है जो आज के टॉपिक में भी आपको नजर ऊपर आ रहा है, थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट। साइंस और फिलॉसफी में क्या फर्क है? साइंस जो है वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिलॉसफी जो है वो थॉट में एक्सपेरिमेंट करता है। थॉट एक्सपेरिमेंट, वो सोच लॉजिक को लड़ाता है, तो इसको कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें कि जी शहबाज शरीफ जो है वो कैसे प्राइम मिनिस्टर होगा पाकिस्तान में। तो अभी तक आपने ना शहबाज शरीफ को देखा है, ना उसने हल्फ उठाया है, ना वो पार्लियामेंट गया है, ठीक है, ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा है। लेकिन आपका विजन, आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग है कि तुम पहले से प्रिडिक्ट करते हो कि भाई शहबाज शरीफ के पाकिस्तान का कैसा प्राइम मिनिस्टर होगा। इसको कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। तो फिलॉसफी में और इसे राइटिंग में आप थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अटोपिया जो है, जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, आज के नोट्स में अभी आपको मिलेंगे। अटोपिया, आइडियल स्टेट, ठीक है, और इसका उल्टा जो है वो डिस्टोपिया, डिसऑर्गेनाइज स्टेट। तो आपको पाकिस्तान आगे कैसे नजर आ रहा है? अटोपिया नजर आ रहा है या डिस्टोपिया नजर आ रहा है? ठीक है, अब अटोपिया जो है पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है, वो भी PMLN की है, और इस्लामाबाद में भी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो भी PMLN की है। पीपल्स पार्टी का फुल सपोर्ट है, MQM के साथ भी बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा जा रहा है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो अमेरिका को, यूरोप को, चाइना को, अरबों को, सबको मंजूर है, और इमरान खान को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो यार हो सकता है पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क बन जाए। तो अगर आपका ये थिंकिंग है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, सो दिस इज अटोपिया। हो सकता है ठीक भी हो। डिस्टोपिया ये है कि फिर आप जो है वो नहीं जी, पाकिस्तान को आप ब्लड शेड देख रहे हैं, अपोजिशन है, PTI है, रोडों में लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड ब्लॉक है, फैक्ट्रीज बंद है, और जी ख़त्म नबूवत की जो है ना कहानियाँ हो रही है। ऊपर से जो है मौलवी साहिबान भी बाहर निकल आए हैं, मौलाना फजल रहमान भी निकल आए हैं, सारे लोग बहुत द्रस ग्रुप ब्लड शेड। तो ये डिस्टोपिया है। अब ये सारा जो है आप थॉट एक्सपेरिमेंट में करते हैं, विजन में करते हैं, और ये जो आपका इमेजिनेशन है, इसको जब आप वर्ड्स में लाते हैं, सो इट बिकम्स लिटरेरी एसे। तो इसके लिए बड़ा रिच इमेजिनेशन चाहिए, बहुत जो है, ताकि आप फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। व्हाट इज योर
प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, ये फ्यूचर के बारे में आपकी पेशेंगोई क्या है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं? ट्रंप अगर जीत जाता है और पुतिन अगर यूक्रेन में वार जीत जाता है, इजराइल अगर हमास को मुकम्मल ख़त्म करता है, गज़ा को इजराइल में शामिल करता है, और फ़लस्तीनियों को जो उनका एक ख्वाब है सेकंड स्टेट वो ख़त्म हो जाता है, अरब जो है वो उनको कोई परवाह नहीं है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो लगा हुआ है अपनी सऊदी को स्ट्रांग करने में, उसको कोई परवाह नहीं कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन रहा है। तो all these things, when you imagine, so you are writing and you are becoming a great writer. Now where philosophy and literature mix, ये दोनों mix कैसे हो जाते हैं? So they get mixed in the RETI, RETI. Now RETI is rationalism, empiricism, T stands for transcendentalism, and I stands for intuitionism. तो ये जो आखिरी दो है, ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड इंट्यूशनिज्म, ये आखिरी दो जो है ये आपको बना देता है लिटरेरी, आप लिटरेचर की दुनिया में चले जाते हैं। सो फिलॉसफी डज रिकॉग्नाइज लिटरेचर। अब मैंने आपको जितने भी नोट्स दिए हैं ये 4 लेक्चर्स में, तो उसमें वो फिलासफर भी है और उन्होंने नावल भी लिखे हैं, उन्होंने ड्रामे भी लिखी है, उन्होंने जो है वो मतलब है कि अदबी चीज़ें भी लिखी है। तो अदब और फ़लसफ़ा जो है ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्योर हार्ड कोर फिलासफी है वो बिलीव करता है किस पे? लॉजिक पे, रेशनलिज्म पे, अकल पे। फिर फिलासफी जो है थोड़ा सा आगे जाके साइंस बन जाती है एम्पेरिसिज्म पे। एम्पेरिसिज्म वो क्या है? साइंस। फिर थोड़ा सा आगे जाके ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म की 2 बड़े मशहूर राइटर्स है, वन इज इमर्सन, जिसको मैंने आपको पहले लेक्चर में जिक्र किया था, इमर्सन, और अमेरिकन है ये, अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म इसको कहते हैं। और दूसरा है जर्मन ट्रांसेंडेंटलिज्म, हु इज रिप्रेजेंटेड बाय कांट, KANT। तो कांट का जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है या ट्रांसेंडेंटलिज्म है उसका अपना एक पहलू है, और इमर्सन का जो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म है उसका दूसरा पहलू है। लेकिन लिटरेरी और फिलोसॉफिकल एसेज में जो ज़्यादा रेलेवेंट है कांट, KANT, कांट, और इमर्सन में वो इमर्सन ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि इमर्सन जो है उसके ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब ये है कि इंसान पे कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो ना अकल का इस्तेमाल करता है ना हवास का इस्तेमाल करता है। मसलन आप किसी दरिया के किनारे बैठे हैं, ठीक है, खूबसूरत दरिया है और खामोशी है और मौजे है और वहाँ खूबसूरत दरख्त है, ग्रीनरी है, आप अकेले बैठे हैं, आप एक मशहूर कुन जो है एक मदहोश कुन हालात में बैठे हैं। तो इस वक्त जो आपकी हालत है ये क्या है? क्या आप अकल इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। क्या हवास इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। आप ऐसे एक मावरा ट्रांसेंडेंटल एक बालातर माहौल में चले जाते हैं और आप नेचर, म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उस वक्त आपको मोहब्बत की बातें, गज़लें, मौसीकी, पोइट्री, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, जो आपके पसंदीदा लोग हैं, आपके महबूब है, महबूबा है, जो भी है वो आपको याद आते हैं। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें लोग शायरी लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ देखते हैं डैफोडिल्स को, तो डैफोडिल्स पे जो शायरी लिखता है कोई अपने महबूब की जुल्फ पे बातें करता है, कोई आंखों की तारीफ करता है, कोई क्या करता है क्या करता है। तो ये जो हालत है नेचर के साथ इतना कनेक्ट होना और फिर उसको एक्सप्रेस करना, दैट इज लिटरेरी राइटिंग। We use mind in rationalism, senses in empiricism, but what we use in transcendentalism and intuitionism. हाँ तो इसी तरफ मैं आता हूँ। अब जो माइंड बॉडी डुअलिटी है, माइंड बॉडी
डुअलिटी, कि क्या माइंड अलहदा है और बॉडी अलहदा है। कांट कहता है कि एंटी कि हाँ, ये दोनों सेपरेट है। डुअलिज्म इसको कहते हैं। मॉनिज्म जो है, MONISM, मोनिज्म मीन्स दैट नो, दे आर द सेम। माइंड क्या है? माइंड आपका ब्रेन का फंक्शन है। ब्रेन नहीं है तो माइंड कहां से आएगा? तो ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है कि क्या बॉडी माइंड एक है या सेपरेट है। तो कांट का ये कंट्रीब्यूशन है, उसको कहते हैं कोपरनिकन रिवोल्यूशन इन फिलॉसफी। जो कांट का अप्रोच है, कोपरनिकन रिवोल्यूशन है। जिस तरह के अरिस्टोटल ने कहा था साइंस में कि ज़मीन जो है ये सेंटर है, बाकी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो अरिस्टोटल का साइंस गलत साबित किया कोपरनिकस ने कहा नहीं, ज़मीन जो है ये एक सैयारा है और ये घूमता है सूरज के इर्द गिर्द। तो सेंट्रल फिगर जो है वो सूरज है, वो ज़मीन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था इल्म की दुनिया में। तो फिलॉसफी में जो बड़ा इनकलाब आया है वो कांट ने लाया है कि उसने बॉडी और माइंड, फिजिकल और स्पिरिचुअल, इन दोनों को इकट्ठा किया है और दोनों को इंटरकनेक्ट किया है। और जब ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, सो द होल इज बिगर देन द हाउस, द होल इज बिगर देन द पार्ट्स। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो होल है, WHOLE, जो मजमूई चीज़ है, जो बड़ी चीज़ है, वो उसके अपने पार्ट से वो बड़ी होती है। ठीक है, अब ये घर है जिस घर में मैं बैठा हूं, तो इस घर में दीवारें हैं, इसमें अलमारियां है, इसमें किचन है, इसमें कमरे हैं। तो क्या ये घर जो है इन चीज़ों का नाम है, इन पार्ट्स का नाम है? एनालिटिकल अप्रोच ये कहता है, एनालिसिस, के हाँ, घर क्या है? घर दीवारों, अलमारियों और फर्नीचर, इसका नाम है। तो होलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि नहीं, ये घर इन चीजों से थोड़ा सा बालातर है। तो जब आप ये माइंड और इनसे, अब साइंस जो है, प्योर साइंस, वो माइंड तक तो रिकॉग्नाइज करता है। अब साइकोलॉजी इज अ वेरी रीसेंट साइंस। साइकोलॉजी भी कोई नहीं मान रहा था कि यार ये क्या है, सिर्फ बॉडी है। और अभी भी ऐसी अप्रोचेज है, फिजिकलिज्म और मेंटलिज्म, फिजिकलिज्म, मटेरियलिज्म जो है, वो कहते हैं कि सिर्फ फिजिक है, बॉडी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मटेरियलिज्म जो है, मैटर है। लेकिन कल हमने डिस्कस किया था कि भाई तीन चीजें हैं, आइडिया भी है, लैंग्वेज भी है और मैटर भी है, ये तीनों मौजूद है, आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म। तो जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और फिर नेचर आ जाता है दरमियान में और खूबसूरत जगह आ जाती है, तो दरिया के किनारे या किसी बाग में या किसी पहाड़ में जो आपके एहसास होते हैं, वो नहीं होते जो आप किसी गंदी जगह में बैठे हैं या किसी स्ट्रेस में बैठे हैं या किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में बैठे हैं। इंसान तो वही है, ठीक है ना, यही इंसान है। उधर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, आप अस्पताल में बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब यही इंसान जाके जो है किसी खूबसूरत जगह बैठ जाता है, तो फिर उसके जो हालात है वो चेंज हो जाते हैं, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके एक्सपीरियंसेस सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये जो चेंज है, ये एक ट्रांसेंडेंटल चीज है, ये आम रेशनल और मेंटल चीज नहीं है। दो, हमारे पास कोई और चीज नहीं है कि भाई हम उससे उसको नापा जा सके। मतलब माइंड और बॉडी के अलावा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इंट्यूशन जो है, विजदान, इंट्यूशनिज्म, वो इसका एडवांस शक्ल है कि भाई एक विजदान भी है, एक तो हम चीज़ की पीछे जाते हैं और जब चीज़ हमारी पीछे आती है, और एक हम सुपर कॉन्शियसनेस और हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिल जाते हैं। अब मेरे साथ ही बहुत दफ़ा होता है कि मैं जब भी अपना मोबाइल देखता हूँ टाइम, तो फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत दफ़ा, हर दिन, अब मुझे नहीं पता कि टाइम क्या है, जब मैं मोबाइल को उठाता हूँ देखता हूँ तो 12-12, ठीक है, और 2-2 और सारी 4-0 या 4-1, 11-11, ठीक है, या सारी 2, 22-22। तो ये एक सुपर कॉन्शियसनेस है, एक यूनिवर्सल चीज है कि वो भी आपके साथ लगी हुई है। आपके अलावा जो है एक यूनिवर्स भी है जो इन चीजों को चलाती है।
तो उसमें फिर इंट्यूशन जो है, विजदान, वो एक नई चीज है। अब इसमें जो सिगमंड फ्राइड है उसने बड़ा इस पर रिसर्च किया है, जो साइको एनालिसिस का बानी है, फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी है, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड जो ये कहता है कि भाई इंसान जो है, उसका जो माइंड है, उसके 3 पार्ट्स है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस तो बहुत छोटा सा माइंड है, मतलब इस वक्त जो आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो ये जो आपका माइंड है, ये तो बहुत छोटा है। इसके पीछे तो आपकी 20, 25, 30 साल जिंदगी है, आपकी एक्सपीरियंसेस है, आपकी ख्वाहिशात है, आपके ख्वाब है, आपके प्राइमरी स्कूल है, आपकी फैमिली है, आपकी जेब में पैसे है, आपकी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है। आप तो एक बहुत गहरे इंसान है। मुझे जो सामने नजर आ रहा है वो तो आप पूरा इंसान नहीं हो। तो वो जो पूरा इंसान है वो किधर है? वो पूरा इंसान जो है वो अनकॉन्शियस में है, लाशऊर में है। और वो जो अनकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान सब कॉन्शियस की खिड़की है, और उस खिड़की से थोड़ा थोड़ा जो है वो नजर आता है। अब आप बज़ाहिर बड़े अच्छे इंसान हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सिंधी है और मैं आपका टीचर हूं, नईम खान हो, जो भी हो, मैं आपको कहता हूं यार सिंधी लोग अच्छे नहीं होते, पठान बड़े अच्छे होते हैं, पश्तून बड़े अच्छे हैं, उधर से आपके अंदर का इंसान जाग जाता है कि इसने तो मेरे नस्ल को और मेरी जबान को इसने चैलेंज दिया, मैं उसको देखूंगा, ये कौन है। तो वो जो चीजें है, आपकी जो अटैचमेंट्स है, जो कनेक्शंस है, वो फिर लाशऊर से शऊर में आ जाते हैं। तो इंट्यूशन जो है ये बेसिकली आपके अनकॉन्शियस का नाम है, लाशऊर का नाम है। जो विजदान है, जो छठी हिस्स है, ये आपके अनकॉन्शियस लाशऊर का नाम है, या सिगमंड फ्राइड जो है उसको इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, जबिल्लत, क्योंकि हम तो है तो एनिमल्स। तो जो हमारा डीएनए है, हमारी क्रोमोसोम्स है, जिस चीज के साथ हम पैदा हुए हैं, जो हमारा नेचर है अंदर का, जो जबिल्लत है, जो इंस्टिंक्ट है, उसको इंट्यूशन कहते हैं। एक तो मैं अकल से एक चीज सीखता हूं या आंखों से देखता हूं, एक मेरा अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम है, मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो पैदाइश से मेरे साथ चल रहा है। तो वो जो चीज है वो आपका इंस्टिंक्ट है या वो आपका इंट्यूशन है। तो उसको कुछ लोग जो है इग्नोर करते हैं, कुछ लोग ज्यादा अकल से इस्तेमाल लेते हैं, कुछ पे नेचुरल होते हैं, इंस्टिंक्ट उनका काम करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो ट्रुथ पे चलते हैं। तो ये इंट्यूशनिज्म है। तो फ्यूचर को आप फिर इस लिहाज से देखते हैं थोड़ा सा। फिर ये इंट्यूशन जो है, फिर स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोग उसको सोल का नाम देते हैं, स्पिरिट का नाम देते हैं, जो अंदर का इंसान है, जो मेडिटेशन में आपको मिलता है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको इंट्यूशन में नजर आते हैं। तो जब भी आप कोई लिटरेरी ऐसे लिखते हैं, तो उसमें आपका जो विजदान है, जो आपका अंदरूनी इंसान है, जो कैरेक्टर है, वो भी आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब टॉल्स्टाई है या दस्तोवस्की है, जो रशियन राइटर्स है, उनका बहुत ज्यादा जोर, जो उनका जो कैरेक्टर होता है वो बहुत पीछे जाता है, और लाशऊर में जो है अनकॉन्शियस से वो चीजों को, या काफका है, KAFKA, काफका। तो ये बड़े डीप लोग हैं, और ये बड़े गहराई की बातें करते हैं। ये सतही बातें, सुपरफिशियल बातें जो है वो नहीं करते। तो फ्यूचर ये है कि भाई फिलॉसफी जो है वो आपको रैशनल करता है, साइंस आपको एम्पेरिकल करता है, फिर लिटरेचर जो है वो आपको ट्रांसेंडेंटल और इंट्यूटिव करता है। तो वो जो लिटरेचर आपको चीजें दिखाते हैं, तो वो कोई लेबॉर्टरी में आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब साइकोलॉजी जो है अभी अभी साइंस बन गया है, वरना साइंटिस्ट ये कहता है कि वट एवर इज नॉट मेजरेबल दैट इज नॉट साइंस। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, फिजिकली उसको मेजर नहीं कर सकते, तो वो साइंस नहीं है। वट एवर इज नॉट मेजरेबल इज नॉट साइंस। लेकिन अभी उन्होंने माइंड के मेजरमेंट के वो तरीके निकाले, IQ जो है, इंटेलिजेंस कोशंट, कि आपका, हमें पता चल सकता है कि आपका कितनी इंटेलिजेंट है, आपका माइंड कितना काम करता है। फिर माइंड मैपिंग आ गया, फिर ये न्यूरो साइंस आ गया, फिर आपके ब्रेन को वो पढ़ते हैं, ब्रेन को देखते हैं, ब्रेन की वेव्स को देखते हैं। तो इस वजह से अब साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस बनता जा रहा है। तो दिस इज व्हेन यू राइट अबाउट द डीप एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, द डीप प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ,
and when you are not discussing the superficial things but things of permanent value, so that becomes then literary and philosophical essays. So in this regard, if you have any questions, so please ask. और आज के टॉपिक में जो एक है ऊपर, राइट योर ओन फिलोसॉफिकल एसे, तो प्लीज किसी भी टॉपिक पे, ब्यूटी पे, ह्यूमन लाइफ पे, मैंने आपको कोई 30 टॉपिक्स दिए हुए इस ग्रुप में, लिटरेरी फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, उसमें से कोई टॉपिक उठाए तो उस पर लिखना शुरू करें। और उसमें यूरेका, जो मैंने आज के पोस्ट में किया ना, यूरेका, एकदम से आपको एक इंकिशाफ हो जाता है, इपिफेनी, आपका माइंड एकदम से खुल जाता है, ठीक है, इनलाइटनमेंट, आपको रोशनी आ जाती है, इंट्यूशन, विजदान आपको मिल जाता है। तो ये एक खूबसूरत दुनिया है, जो मटीरियल दुनिया नहीं है, जो सामने सामने की दुनिया नहीं है। और ये इंसान ने जो है, हाँ, एक और जो साइकोलॉजिस्ट है, यंग, JUNG, यंग, ये सिगमंड फ्राइड का दोस्त भी था और उसका स्टूडेंट भी था, बाद में इख्तलाफात हो गए। तो यंग जो है, ये एक, इसने काम किया है आर्कीटाइप्स पे, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे और सिंक्रोनासिटी पे, कि कुछ चीज़ें जो है वो बाई चांस होती है, लेकिन उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है, उसके पीछे भी रीज़न है। मतलब मैंने आपको कहा ना कि मैं जब घड़ी देखता हूँ या अपना मोबाइल देखता हूँ तो 22-22 होता है, चारों 2 होते हैं। ये क्यों होता है? मैंने एग्जैक्ट उस मोमेंट पे अपना मोबाइल क्यों देखा, 2 मिनट पहले क्यों नहीं देखा, 2 मिनट बाद क्यों नहीं देखा? तो एक यूनिवर्स है जो कनेक्शन आपका मिलाता है। तो यंग जो है, JUNG या युंग, JUNG, ये बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट है। इसने इस लेवल पे बातें की है कि इंसान जो है उसका कायनात के साथ क्या ताल्लुक है। और ये जो डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन लिखा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये फिलॉसफी का सबसे मशहूर कोटेशन है, ये डेकार्ट का है, डेकार्ट। तो डेकार्ट ये कहता है कि मैं मौजूद हूं। मैं क्यों मौजूद हूं? क्योंकि मैं सोचता हूं। मैं अगर सोचना बंद करूं, डाउट करना बंद करूं, शक करना बंद करूं, तो मेरे वजूद खत्म हो गया। मैं तो फिर एक मशीन हूं, एक गद्दा हूं, एक जानवर हूं। मैं सोचता नहीं हूं, मैं पूछता नहीं हूं, मैं इल्म हासिल नहीं करता, मुझ में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो फिर मेरी जिंदगी का क्या मकसद है? मेरी जिंदगी का मकसद जो है वो थिंकिंग से आता है। अपने क्वेश्चन को डिलीट न करें प्लीज, राइट इट अगेन। कोई गलती है तो उसको दोबारा लेके डिलीट न करें। जो बंदा क्वेश्चन करता है उसका सब पे एहसान होता है। डरे मत कभी, जो डर गया वो मर गया। कभी मत डरे, कुछ भी नहीं होता। Some mothers ask me sometimes to assist their children when I अब जरूरी नहीं कि टॉपिक पे क्वेश्चन करें, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी चीज पे कर सकते हैं। When I assist them, they do not seem to know their syllabus even, and the response is that the teacher has not taught them. This is the case with every other child in my circle. Even though I studied those things in a different way, but I understand that maybe it is because of the teachers who taught us. But these students, even though they come from well-known schools, still don't perform well. It is the fault of the teachers or the students themselves or the parents. Personally, I have seen such teachers in the interior Sen who have not students beyond 2 classes themselves according to them, but still receive a salary as ghost teachers, and they are telling this proudly, which is frustrating me. There are 8 billion people in this world, and there are millions of people in Pakistan, and there would be millions in Sindh also. प्रॉब्लम यह है कि इंसान जो है वो एक स्टैंडर्ड नहीं है। इंसान जो है, अब फिलासफी ग्रुप में अब जाए, सेफ फिलासफी में, तो वहाँ मैंने लॉजिक पे जो लेक्चर दी है, उसमें एक लॉजिशियन है, कार्ल पॉपर, KARLPOPPER। वो कहता है कि एवरीथिंग इज एवरीवन इज फॉलेबल,
ठीक है, फाल्सिफिकेशनिज्म उसको कहते हैं। तो फालिबिलिस्टिक अप्रोच कि भाई दुनिया में हर बंदे से गलती हो सकती है, कोई भी बंदा मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट हो तो फिर इतना इन्वेस्टिगेशन, इतना रिसर्च हम क्यों करते हैं? फिर तो हमें रुकना चाहिए। अब मज़हब है, मज़हब क्लेम करते हैं कि जी मैं मुकम्मल हूँ, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि मैंने आज आपका दिन कंप्लीट किया। तो अब गॉड की बात या प्रॉफिट की बात को कौन चैलेंज कर सकता है? तो मजहबी लोगों के लिए जो है वो एक मुकम्मल मैसेज है और इस पर कोई गलती नहीं है। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो एक और अप्रोच है। लेकिन नॉलेज में, साइंस में, फिलासफी में, साइकोलॉजी में अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, मज़ीद हमने आगे जाना है। तो कभी भी लोगों की वजह से जो है अपने दिमाग या अपने एहसासात को मत छेड़ा करे, क्योंकि हर इंसान गलत हो सकता है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकती है, वो भी गलत हो सकता है, वो भी गलत हो सकती है। तो इन इन चीज़ों पे मत जाओ। जो फार्मूला है वो क्या है? ईडुआ, EDUA, ईडुआ। दिस विल ओपन योर माइंड and it will make your life so easy as it has made my life easy. ईडुआ is egoism। सबसे पहले मैं, जान है तो जहान है। ईडुआ, ईगोइज्म, मैं, ईगो, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। डिएंटालॉजी, ड्यूटी। आप एज ए टीचर अपनी ड्यूटी करें। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका माइंड है, फुल फोकस, फुल माइंडफुलनेस के साथ उधर अपनी ड्यूटी करे। अब मैं ये लेक्चर दे रहा हूं तो मेरा मेजरमेंट जो है, मेरा स्टैंडर्ड जो है वो मैं खुद हूं, आप लोग नहीं है। ठीक है, मैं कितना मुतमईन हूं खुद अपनी ड्यूटी से। क्या मैंने आपको टॉपिक दिया सुबह? यस। क्या मैंने आपको नोट्स दिए? यस। क्या मैंने टॉपिक पे आपको इस महदूद वक्त में कुछ ना कुछ डिस्कस किया? यस। मैं मुतमईन हूं। अब आगे जो है आप लोगों के क्या ख्यालात है, कोई खूब अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई मुतमईन होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन कम से कम मैं अपनी कंट्रोल में हूं। मैं तो अपना काम अच्छा करूं ना। तो जो मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरा करूं। और इसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है यूटिलिटी, फायदे के काम करो, हैप्पीनेस क्रिएट करो, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी। और आखिर में एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब यह है कि सेल्फलेस सर्विस, कि दुनिया की बगैर किसी लालच के वो करो, सर्विस करो। सो ईडुआ, ईगोइज्म, डिएंटालॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म एंड एल्ट्रुइज्म। दिस इज एथिकल फार्मूला। ये अखलाक का फार्मूला है। इसी से आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी मैं अपने ऊपर भी काम कर रहा हूं। ईगोइज्म, मेरी जो ड्यूटी है, जो मुझे सैलरी मिलती है, मैं वो भी कर रहा हूं। डिएंटालॉजी, मैं मैक्सिमम हैप्पीनेस, यूटिलिटी क्रिएट कर रहा हूं अपने लिए भी और लोगों के लिए भी जो मेरे साथ अटैच है। यूटिलिटेरियनिज्म। और फिर मैं कुछ काम ऐसे भी करता हूं जिसमें न मेरा फायदा है, न मेरी ड्यूटी है कि वो मैं करूं, न मैं वो किसी अपनी खुशी या किसी और के लिए करता हूं, एम ही करता हूं, नीकी कर दरिया में डाल। तो वो एल्ट्रुइज्म है। तो पाकिस्तान का, चूंकि अब प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान में कि हम सोशल मीडिया और कुछ फिलासफी, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस, इसकी वजह से लोगों में, यंग जनरेशन में थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया है और थोड़ा सी रैशनल बातें हो रही है हमारी सोशल मीडिया में भी। तो लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वही ट्रेडिशनल लोग हैं, पुराने तरीके से चलते हैं, इलीगल तनख्वाह भी लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, गोस्ट स्कूल्स में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ज़मीर पे उनका बोझ नहीं होता। वो रेजिस्टेंट होते हैं और वो ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा वो फोर्थ कमिंग होते हैं। तो अगर वो गलत काम कर रहे हैं लेकिन अपने गलत काम को वो प्राउडली रिप्रेजेंट करता है, तो वो तो गलत लोग हैं ना। अब वो इस पे प्राउड है, नहीं है प्राउड, ये तो उनका प्रॉब्लम है। काम तो गलत है ना। जब वो काम गलत है, अगर एक बंदा प्राउडली कहते हैं कि जी 2 + 2 = 5, तो उसका प्राइड जरूरी है या उसका जो एक्शन है वो जरूरी है? उसका एक्शन गलत है, गलत है, इलीगल है, करप्शन है, अनएथिकल है, इमोरल है। तो आपको इस पे खुश होना चाहिए कि मैं जो है वो मैं अच्छा काम कर रहे हो। तो आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ड्यूटी पे करें,
खुद भी खुश रहे, खुशी लोगों में भी बांटे, और कभी कभी कोई एवी काम जो है नेचर के लिए भी करे, हवा में भी कभी कभी जो है ना ऐसे दाने फेंके, हो सकता है कोई परिंदा आ जाए उसको खा ले, सामने परिंदा नहीं है लेकिन आप वैसे फेंक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। लोगों को कभी भी अपना स्टैंडर्ड मत बनाओ। Please, would you like to give a quick light on 3 types of disciples? Again, ये कौन सा डिसाइपल की मैंने बात की? Can you ask again, like which disciples? आप डिसाइपल की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन्स की बात कर रहे हैं? So please comment. Yeah, you can change others, why not? But start the change from yourself. ठीक है ना? जो लीडर्स होते हैं, जो रिफॉर्मर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो चेंज करते हैं लोगों को, बिल्कुल चेंज होते हैं। इस वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टीचिंग है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, बुक्स है, मूवमेंट्स है, तहरीकें है, लीडरशिप है। तो आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लोग तब चेंज होंगे जब आप खुद चेंज होंगे। जब आप में चेंज नहीं है तो वो चीज़ आप किसी और को कैसे दिखा सकते हैं? फिजिशियन हील दाई सेल्फ। डॉक्टर पहले अपना इलाज करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी का मतलब सिर्फ खैरात नहीं है, पैसे देना नहीं है। चैरिटी का मतलब है हर अच्छा काम जो है अपने आप से शुरू करो, उसके बाद लोगों को वो बात करो। क्या डिसिप्लिन की मैंने बात की? 3 डिसिप्लिन। आई डोंट नो वो कौन से 3 डिसिप्लिन थे? हाँ, प्रिवेंटिव, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो वन इज इंटरनल डिसिप्लिन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन एंड प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। इंटरनल डिसिप्लिन ये है कि आप एक इंसान में अंदर उसका कॉन्शियसनेस जो है, उसका शऊर आप बैदार कर लेते हैं और वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो इसको कहते हैं इंटरनल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फोर्स जो है बाहर से बंदे को कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंटिव डिसिप्लिन ये है कि आपको खतरा पहले से नजर आ रहा है तो आप अभी से इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो फिर वो चीज गड़बड़ नहीं होती और आप पहले से उसको प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। So please read the 4 sets of notes. Listen to these 4 lectures again and again so that you have an idea to write on literary, philosophical, abstract essays. ये जो एसेज है ये किसी आम इशू पे, कोई अर्जेंट इशू पे नहीं होते, मतलब पोल्यूशन पे नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि इसमें पोल्यूशन ये है कि इसमें जो आज आपके नोट्स में आप पढ़ेंगे बड़ी खूबसूरत उसमें है ट्रांस ह्यूमैनिज्म, कि इंसान जो है वो मशीन की तरह जब एफिशिएंट हो जाता है। इसमें जो हरारी है उसकी किताब मैंने सजेस्ट किया है होमो डियूस। ठीक है, होमो इंसान, डियूस गॉड। जब इंसान जो है उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो उसको होमो डियूस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आज के नोट्स में आपको मिलेंगे। ये इससे आपका इमेजिनेशन जो है वो रिच हो जाएगा। तो फिर हम आम बातों के बजाय खास खास बात करेंगे, और जब आप खास खास बात कर सकते हैं तो फिर आप खास खास चीज़ों पे लिख भी सकेंगे, और जब आप खास बातों पे लिखते हैं तो वही लिटरेरी एसे है। यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट। याद रखें कि आपके अलावा जो है सारे लोग मरीज है, सारे लोग बीमार है। ठीक है, और आप डॉक्टर है, तो सारे लोगों के साथ मरीज की तरह ट्रीट करें कि यार ये गरीब है, बीमार है, मरीज है, पेशेंट है, इसको प्रॉब्लम है, सिक है, तो खैर है, कोई बात नहीं है। या फिजिकली सिक है या मेंटली सिक है, उसको कुछ तरबियत किसी ने नहीं दी,
माशरा ख़राब है, लोग ख़राब है, तो खैर है, मैं इसके साथ गुजारा करूँगा। तो फिर आपकी सिंपति, एम्पति और फिर कंपैशन, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो फिर आप सफ़र नहीं होते। Is psychology normative or pure science in the bipolar division of science? साइकोलॉजी स्टिल इवॉल्विंग। ये अभी कंप्लीट साइंस नहीं है, जिस तरह के केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या फिजिक्स है या जियोलॉजी है। तो ये उसी तरह का नेचुरल साइंस नहीं है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें जो है अभी भी वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो उसमें अगर आप ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करते हैं या पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं कि जी आपको मोटिवेशन देती है, अच्छे काम करो, ये होगा वो होगा, तो वो अभी तक साइंस 100% साइंटिफिक नहीं है। लेकिन अगर आप साइको एनालिसिस की बात करते हैं, साइकाट्री की बात करते हैं, न्यूरो साइंस की बात करते हैं, कॉग्निटिव साइंस की बात करते हैं, ब्रेन की आप स्टडी करते हैं, सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, फिर वो साइंस है। So all the best guys, take care, good night. Tomorrow we will be starting Prezi course. Our essay course comes to an end. 4 lectures, 4 sets of notes. Please read it and get yourself enriched. नोट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो वहां से स्क्रीनशॉट लेके सेफ ELC व्हाट्सएप ग्रुप में डाले और मैं फिर आपको वॉइस नोट में वो समझाऊंगा।